Hello students, how are you all? My name is Prerna and from today I am starting class 7 science and this is first chapter of class 7 science nutrition in plants. See, this is a general science topic. Anybody can watch this video, but this is specifically for class 7 science students. Okay, so let's start part 1 of this chapter. The chapter name is nutrition in plants. Okay, so firstly we will see the introduction. Food is essential for all living organisms. All living organisms on earth, be it humans, animals, plants, microorganisms, everybody need food. So food is essential for all living organism on earth. There are 5 major components of food: carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So we have 5 major components of food, means food consists of 5 major components. फूड के अंदर 5 चीज़ें होती है, मतलब फूड 5 चीज़ों से मिलकर बनता है. मेजर components, these are called carbohydrates, fats, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और इन 5 कंपोनेंट्स के अलावा 2 और कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर, दैट इज वाटर एंड रफेज. वाटर आपने सुना होगा, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में होता है. ओके, एंड रफेज ऑल्सो. So these 5 components are called nutrients. Which 5 components? These 5 components are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So these 5 components are called nutrients. Okay, all living organisms, plants, animals, microorganisms, etc. require these nutrients in the form of food. See, everybody takes food, be it plants, animals, microorganisms. So why we take food? Because we need these nutrients. Which nutrients we need? These 5 major nutrients and water and roughage. So we need all these 5 nutrients. That's why we eat food. Okay, in the form of food we take all these nutrients. Plants can make their food themselves. सो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं. लाइक वी आर ह्यूमंस, वी कैन नॉट मेक अवर ओन फूड, राइट? बट प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड बाय सिंपल सब्सटेंसेस. ओके, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स और हम, वी ह्यूमंस, वी कैन नॉट मेक अवर ओन फूड. We get our food from plants and animals that eat plants. Okay, so though those organisms who cannot make their own food, like animals or like us, we humans, so what we do? How do we take our food? So what we do, we get our food from plants, right? We get our food from plants. And we also eat some animal products, right? Like we eat milk, cheese, butter. These are animal products. These curd, these are made from milk. Okay, so we get these things from animals, those animals which eat plants. Okay, so we are directly or indirectly taking our food from plants. Okay, so our next question is, what is nutrition? So our chapter name is nutrition in plants. So we must know what is the meaning of nutrition. Nutrition क्या होता है? Nutrition is a mode of taking nutrients or food by an organism and its utilization by the body. So basically what is nutrition? See, we are eating food. Okay, what we are getting while eating food? We are getting nutrients. फूड में हम क्या खा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर फूड बनता है. सो व्हाट वी आर ईटिंग दीज न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग दोज न्यूट्रिएंट्स, मीन्स मोड ऑफ टेकिंग फूड, मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म. तो जब एक ऑर्गेनिज्म फूड खाता है, means what he is doing by eating food, he is taking all the essential nutrients. वो सब न्यूट्रिएंट्स वो ले रहा है फूड के थ्रू जो उसको ज़रूरत है उसकी बॉडी को, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और वो न्यूट्रिएंट्स फिर वो क्या करता है, उसकी बॉडी इस्तेमाल करती है. किन चीज़ों के लिए वो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं? हमारी ग्रोथ के लिए, ओके, हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए. सो देयर आर मैनी लाइफ फंक्शंस
that need nutrients to perform those activities. How? See, we eat food, we eat nutrients, and that food release energy in our body. Okay, and that energy is used to perform various life processes in our body. Okay, so what is nutrition? Nutrition is a mode of taking nutrients or food by an organism and its utilization by the body. Taking food and its utilization also. So these two things combined up to make the definition of nutrition. Nutrients help living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. So we are taking nutrients, but why we are taking nutrients? What is the purpose of taking nutrients? What are the nutrients doing in our body? So what they do in our body, nutrients help living organisms, or nutrients help us टू बिल्ड आवर बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ को बनाने में, हमारी बॉडीज़ में नए सेल्स बनाने में, टू ग्रो, हमें ग्रो करने में, हमारी बॉडी के में नए सेल्स बनेंगे. सो व्हाट आवर बॉडी विल डू, आवर बॉडी विल ग्रो. ओके, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज सेल्स होते हैं, डैमेज टिश्यूज होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए, डैमेज ऑर्गन्स ऑल्सो. ओके, सो हमारी बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए भी वी नीड एनर्जी, वी नीड न्यूट्रिएंट्स. ओके, एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो हमें कैटेगराइज करते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. व्हाई आर वी लिविंग? बिकॉज देयर आर मैनी लाइफ प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन. Without these life processes, our life is of no use, means we will consider as non-living. If we will not perform these life processes, then we will not be considered as living. So if we are living organism, so these life processes are must for our bodies. Okay, so to perform these life processes, to carry out these life processes, we need energy. And from where we get this energy? We get this energy from our food, from nutrients. Okay, next is type of nutrition. How many types of nutrition is there? So there are two types of nutrition basically. First is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. So we'll discuss about first autotrophic nutrition. Auto means self. Means what will be the definition of autotrophic nutrition? It is a mode of nutrition, and you know what is nutrition? Nutrition is taking nutrients and utilizing those nutrients. Okay, so autotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances. Okay, autotrophic nutrition क्या होता है? It is a mode of nutrition in which जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस. एंड विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, green plants. Yes, green plants are able to make their own food. We cannot make our own food, so we do not follow autotrophic nutrition. Okay, so the example of autotrophic nutrition is green plants, because green plants make their own food with simple substances. What are these simple substances here? So we know that green plants make their food with the help of carbon dioxide, water and minerals. Okay, so these are the simple substances by which green plants make their own food, and that's why green plants are also called autotrophs, because the mode of nutrition in plants is autotrophic nutrition. That's why green plants are also called autotrophs. So those organisms which have autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. Okay, so second is heterotrophic nutrition. Hetero means others. Okay, hetero means others. So if an organism take its food from other organism,
Okay, so it is following the heterotrophic mode of nutrition. So what is the definition of heterotrophic mode of nutrition? It is a mode of nutrition in which organisms take complex food from other organisms and break it into simple substances. See, plants are making their own food from simple substances, and the food gets converted into complex substance. Okay, how plants make food from carbon dioxide, water and minerals. Okay, and it gets converted into starch. Starch is a complex carbohydrate. Okay, so it is a complex food. So that complex food is taken by organisms, other organisms. Which organisms? Heterotrophic organisms. Okay, heterotrophs. So heterotrophs take that complex food made by plants, okay, and break it into simple substances, and the process of breaking of food into simple substance is called digestion. Yes, we take food and there is a process going on in our body. That process is called digestion, by which that complex food gets converted into simple substances. Okay, so what is the definition of heterotrophic nutrition? It is a mode of nutrition in which organisms take complex food from other organisms and break it into simple substances, and the organisms which follow this mode of nutrition are called heterotrophs. Like us, we humans are heterotrophs. Animals, like all the animals that eat plant products, all the animals are called heterotrophs. Okay, next is mode of nutrition in plants. We have discussed this already, that mode of nutrition in plants is autotrophic, means plants make their own food by simple substances. Okay, plants make their own food, and how they make their own food? By simple substances, and the process by which plants make their own food, that is called photosynthesis. Okay, that we will discuss later. Plants use carbon dioxide, water and minerals, chlorophyll and sunlight for preparing their food. So what are the materials? What are the raw materials that plants need to prepare their food? The materials are carbon dioxide, water and minerals, chlorophyll for preparing their food. See, plants use carbon dioxide. So from where these plants get carbon dioxide? From air. Okay, and water and minerals they get from the soil. Okay, plants roots absorb these water and minerals from the soil, and chlorophyll, it is present in the leaves. Okay, and so next is photosynthesis, food making process in plants. So I have told you that the food making process in plants is called photosynthesis. The process by which plants make their own food, that process is called photosynthesis. So let's discuss this process. Leaves are the food factories of plants. Okay, why leaves are called food factories of plants? Because in plants, where is food prepared? In leaves. Okay, जहाँ पर कोई चीज़ बनती है, प्रोडक्शन होती है किसी चीज़ की, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री बोल देते हैं ना. सो हम लीव्स को क्या बोलते हैं? प्लांट्स की फैक्ट्रीज. वाई लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज? बिकॉज फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स. समटाइम्स लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स. Why it is called the kitchen of the plants? Because food is prepared there. Like we have kitchen in our house, and what we do in the kitchen? We prepare food. So like this, plants also prepare food, and where plants prepare their food? They prepare food in the leaves. So leaves are called the food factories of the plants, or they may be called the kitchen of the plants. The synthesis of food in plants occurs in leaves. तो food कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर बनता है. Therefore all the raw materials must reach there. अब जहाँ पर फूड बनेगा वहाँ पे उसको बनाने का सामान होना चाहिए. ठीक है, लाइक वी कुक फूड इन किचन. ओके, हम खाना प्रिपेयर नहीं करते हैं, बट वी कुक द फूड. ओके, तो जब हमें खाने को पकाना है, वी नीड द मटेरियल्स. ओके, सो वी नीड द मटेरियल्स टू द किचन. हम बाजार से सामान लाते हैं, ठीक है, और फिर उसको किचन में लेके जाते हैं. किचन में हम खाना बनाते हैं उससे. ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स को भी जो जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है खाना बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल्स कहाँ पहुँचाने हैं? लीव्स में पहुँचाने हैं, बिकॉज लीव्स में ही खाना बनेगा ना. सो ऑल दोज रॉ मटेरियल्स दैट प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड, टू प्रिपेयर देयर food, that must reach
to the leaves. So water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. तो जो water and minerals हैं, water and minerals are present in the soil. water and minerals कहाँ present होते हैं? soil में present होते हैं. आपको पता है जब भी हम plants को पानी देते हैं तो soil में देते हैं, ओके? तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. अब सॉइल से वो वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ लेकर जाना है? हमें लीव्स में लेके जाना है. अब सॉइल देखो कहाँ होती है. सॉइल के कांटेक्ट में प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रूट्स होती हैं, ओके? तो रूट्स के कांटेक्ट में है वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि रूट्स कहाँ होती हैं? सॉइल के अंदर होती हैं, ठीक है? ग्राउंड के अंदर होती है, राइट? तो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ होते हैं? रूट्स के कांटेक्ट में. और उनको कहाँ लेकर जाना है? लीव्स तक पहुंचाना है. तो उन वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगी? रूट्स करेंगी. कैसे? रूट्स पहले वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है? क्या कर लेंगी? अपने अंदर सोख लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी. और फिर उन रूट्स से जो वो पानी है और मिनरल्स हैं वो कुछ स्पेशल टिश्यूज के थ्रू, वो टिश्यूज जो वेसल्स के जैसे होते हैं, पाइप के जैसे टिश्यूज होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू अपवर्ड मूवमेंट में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लीव्स में पानी और मिनरल्स जो है वो पहुंच जाएंगे, ठीक है? और वो जो पाइप के जैसे टिश्यूज होते हैं जिनसे पानी, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स से लीव्स तक पहुंचते हैं, ठीक है? उन टिश्यूज को हम बोलते हैं जाइलम वेसल्स. तो जाइलम वेसल्स के थ्रू क्या होता है? रूट से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाया जाता है बाय द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ओके? सो हाउ लीव्स गेट वाटर एंड मिनरल्स? सो फर्स्टली roots absorb water and mineral from the soil, and the roots transport those water and mineral to the xylem vessels. From there, xylem vessels take these to the leaves of the plant, okay? Next is carbon dioxide. A plant need carbon dioxide also for making food. And where is carbon dioxide present? Carbon dioxide is present in air, okay? So carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. तो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उन लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है? तो उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ओके? दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज मतलब एटमॉस्फेयर और प्लांट के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेता है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाती है. तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है. स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है, ऑक्सीजन बाहर चली जाती है. लेकिन जब रेस्पिरेशन होता है, मतलब प्लांट्स अभी सांस भी लेते हैं, लाइफ प्रोसेस है ना, तो रेस्पिरेशन कैसे होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है? तो प्लांट्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, ठीक है? तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है? स्टोमेटा के थ्रू ही वो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है? अब देखो होता क्या है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, ठीक है? अभी फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज ऑपोजिट है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इन, ऑक्सीजन आउट. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, प्लांट्स यूज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है स्टोमेटा के थ्रू, और ऑक्सीजन जो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो रिलीज होती है, ठीक है? तो ऑक्सीजन बाहर, ठीक है? और रेस्पिरेशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट. रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट. मतलब प्लांट्स ऑक्सीजन लेंगे रिस्पायर करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर छोड़ेंगे, ठीक है? तब ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं. अभी देखो दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो ज्यादा होती है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है वो ज्यादा हो रही है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज हो जाती है, ठीक है? बिकॉज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो बाहर के एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस से बाहर फोटोसिंथेसिस निकलती है वो भी यूज हो जाती है, ठीक है? और फिर क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है बाहर, क्योंकि ऑक्सीजन का कंटेंट जो
फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है बजाय कि रेस्पिरेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए होती है। तो दिन में बेसिकली क्या होता है, इन द डे लाइट जब प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट, कंबाइंड प्रोडक्ट है ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट। बट इफ वी विल टॉक अबाउट द नाइट टाइम, तो रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सोलर एनर्जी की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है। अब रात को तो सनलाइट होती नहीं है ना, ठीक है, तो रात को अगर सनलाइट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती नहीं है। तो रात को क्या होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो रात में क्या होगा, प्लांट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ओके, ओनली वन प्रोसेस इज गोइंग ऑन एट नाइट, दैट इज ऑक्सीजन इन, carbon dioxide out. The process is called respiration. Okay. Next point, the leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of sunlight. You have seen the leaves of the plants, and what is the color of those leaves? The leaves are green in color. Okay, leaves क्या होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों होती हैं वो ग्रीन कलर की? क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ओके, पिगमेंट मीन्स कलर, ठीक है। सो देयर इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स, दैट्स व्हाई लीव्स अपीयर टू अस ग्रीन इन कलर। ओके, तो लीव्स हमें कैसी दिखाई देती हैं, ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ दैट पिगमेंट। और उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो उस क्लोरोफिल का क्या काम होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, वो क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करता है। ट्रैप मतलब पकड़ लेता है उसको, ठीक है, जकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। So this is the function of chlorophyll. What is the function of chlorophyll? It helps leaves to capture the energy of the sunlight. Okay, it helps leaves to capture the energy of the sunlight. Okay, next is solar energy. Photosynthesis की process में last रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो, जब कोई भी रिएक्शन होती है, वी नीड सम एनर्जी, ठीक है। कुछ भी हो, कोई भी रिएक्शन हो, हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे हम अपना खाना पकाते हैं किचन में, तो हम वहां पे हीट एनर्जी यूज करते हैं, हीट करते हैं तभी तो खाना पकता है ना। सो वी आर यूजिंग एनर्जी देयर, हीट एनर्जी। तो इसी तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी कौन सी होती है, सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी यूज होती है फूड बनाने के लिए, और फूड किस किस चीज से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, ठीक है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब जो खाना बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, और जहां पर लाइट वर्ड होता है साइंस में, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, फोटो। ओके, फोटो मीन्स लाइट इन साइंस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को क्यों बोला जाता है, बिकॉज लाइट इज यूज्ड, विच लाइट, सनलाइट। यहाँ पे सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना, किसी कोई चीज बनाना। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट था, दैट इज सेकेंड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव के सरफेस पर जो टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। देखो, जो स्टोमेटा है, यहाँ पिक्चर में देखेंगे, स्टोमेटा का पिक्चर दिया है, उसके अराउंड 2 सेल्स दिखा रखे हैं, कैश्यू टाइप, काजू होता है ना जैसे, उस तरह के सेल्स दिखाए हुए हैं, और बीच में एक छोटा सा पोर है जो है स्टोमेटल ओपनिंग। तो साइड में जो 2 सेल हैं उनको बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड का मतलब क्या होता है, गार्ड करना, गार्ड सुना है ना, रक्षा करना, ठीक है। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स जो हैं उनका काम क्या होता है, जो ये स्टोमेटा का पोर आपको फिगर में ओपन दिख रहा है, ठीक है, इसको ओपन और क्लोज करना। जब उसको ओपन करने की जरूरत है तो ओपन कर देना, ठीक है, और जब उसको क्लोज करने की जरूरत है तो क्लोज कर देना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ओके, सो स्टोमेटल पोर्स जितने भी होते हैं उनके अराउंड 2 सेल्स होते हैं, हर पोर के अराउंड, उन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ओके ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस को हम कंटिन्यू करते हैं। Photosynthesis is a unique process on the earth
द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। अभी हमने पढ़ा कि जो सोलर एनर्जी वो कैसे कैप्चर होती है, कौन कैप्चर करता है उसको, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में। ओके, दैट सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, केमिकल एनर्जी। देखो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो सोलर एनर्जी कैप्चर हो गई, लीव्स ने उनको कैप्चर कर लिया, ठीक है, वो सोलर एनर्जी से क्या बन गया, फूड बन गया, ठीक है। तो फूड इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो वो सोलर एनर्जी, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उसका क्या बन गया, अभी फूड बन गया है। ओके, सो द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स is stored in the plants in the form of food, that is chemical energy. So this chemical energy is transferred to other organisms when they eat plants and plant products. अब देखो जो फूड है वो प्लांट्स में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था ना, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम खाते हैं अपनी डाइट में। सो स्टार्च क्या होता है, प्लांट जो है वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। और वो स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टोर हो जाता है। तो एक फूड जो होता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। फिर जब हम प्लांट फूड को खाते हैं, ठीक है, प्लांट का कोई प्रोडक्ट जब हम खाते हैं तो प्लांट की जो केमिकल एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड जो हम ले लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो जब वो खाता है तो वो जो एनर्जी है प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ फूड, दैट एनर्जी गेट्स ट्रांसफर टू दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, किस ऑर्गेनिज्म में, जो भी प्लांट प्रोडक्ट को खा रहा है, ठीक है। सो द केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू अदर ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जब हम प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं तो प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड एनर्जी वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ओके, सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के अंदर वो सेल्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो सेल्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट को कैप्चर करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ओके, विथ न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स हैं खाना बनाने के लिए प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हम एरो मतलब कि अभी प्रोसेस चल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। सो वी आर यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। एंड विच कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, लेकिन जब वो खाना जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज स्टोर नहीं कर सकता है प्लांट, तो वो किस फॉर्म में उसको स्टोर करता है, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी शुगर्स ग्लूकोज की यूनिट को जब हम एक चेन बना देते हैं तो स्टार्च बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनता है, प्रिपेयर होता है, एंड इट इज स्टोर्ड इन द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। सो व्हाट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या क्या बनता है। अभी हमने देखा कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, तो हम देखते हैं ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बनती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। कैसे रिलीज होती है, थ्रू द पोर्स, थ्रू द टाइनी पोर्स। उन पोर्स को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं, मीन्स स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग जो बनती है, जो मेन है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसके लिए पूरी प्रोसेस होती है, वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं।
Carbohydrates get stored in the form of starch in plants. Presence of starch indicates the occurrence of photosynthesis. मतलब अगर किसी प्लांट की लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स उस प्लांट में उनकी लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दिया है, इसमें आपको एक प्लांट शो किया हुआ है और ऊपर लाइट एनर्जी है, मीन्स सनलाइट एनर्जी। और देखो जो एरोज हैं लीफ की तरफ जो जा रहे हैं, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ में एंटर कर रही है थ्रू द स्टोमेटापोर्स, ठीक है। और क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर, और रूट्स के पास क्या है, सॉयल, रूट्स के अराउंड क्या है, सॉयल है, और सॉयल में क्या है, वाटर एंड मिनरल्स हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स सॉयल के थ्रू रूट्स में जाएंगे, रूट्स के थ्रू लीव्स में जाएंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और ऑक्सीजन देखो आउटसाइड बाहर की तरफ एरो है, मतलब ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है, ओके। नेक्स्ट हेयर इज एक्टिविटी टू प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो सनलाइट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि क्या होता है, आप इसको घर में कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या करना है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। 2 सेम तरह के प्लांट्स लेने हैं, गमले होते हैं ना, तो 2 गमले लेने हैं जिसमें सेम तरह के प्लांट्स ग्रो हो रखे हों, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या करना है, जो एक पॉट है उसको सनलाइट में ही रहने देना है। यूजुअली आप घर में अगर आपके प्लांट्स होंगे तो वो सनलाइट मतलब रोशनी में रहेंगे ना सन की, तो उसको सनलाइट में ही रहने देना है। लेकिन एक पॉट को आपको क्या करना है, उसको 3 दिन के लिए आपको सनलाइट से दूर रख देना है, मतलब डार्क में रख देना है। तो डार्क में आप कैसे रख सकते हो, अंधेरे में रख सकते हो अंदर, नहीं तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड लगा के मतलब आप उसको ढक सकते हो ब्लैक कलर से, ठीक है। तो इस तरह से वो अंधेरे में हो जाएगा, ठीक है। हमने उसे अंधेरे में क्यों रखा, ताकि उस पर सनलाइट ना पहुंचे, ठीक है। तो हमारे पास 2 प्लांट्स हमने लिए, सेम प्लांट्स हैं, 2 पॉट्स लिए हैं, एक को हमने सनलाइट में रखा है, दूसरे को हमने सनलाइट से दूर रखा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्या दोनों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है या एक में ही होती है, किस में होती है और किस में नहीं होती है, ठीक है। तो जो प्लांट हमने जो पोट है हमारा, जो हमने सनलाइट में रखा है, तो उसकी हम लीफ लेंगे, ठीक है। और आपने 6th क्लास में पढ़ा था आयोडीन टेस्ट, स्टार्च जो होती है, अब लीफ में एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं, कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि उसकी जो लीव्स है उसमें स्टार्च है या नहीं, ठीक है। प्लांट में जो फूड है वो कैसे स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम चेक करेंगे कि उस लीफ में जो है वो स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्च को हम कैसे चेक करते हैं, आयोडीन टेस्ट से चेक करते हैं, ठीक है। उस लीफ को हम क्या करेंगे, उस लीफ पे आयोडीन स्प्रेड करेंगे या फिर उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, ठीक है। अगर उस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है, अगर उस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च है मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है, राइट। अगर लीफ का कलर चेंज नहीं होता, ठीक है, येलोइश रहता है, देखो जब आप सनलाइट अगर उसमें नहीं बन रहा है, अगर उसमें स्टार्च नहीं बन रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो वो लीव्स जो होंगी वो विदर हो जाएंगी, उनको सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो येलोइश कलर की हो जाती हैं, ठीक है। जब आप उनको चेक करोगे आयोडीन सॉल्यूशन से, तो उनका कलर चेंज नहीं होगा, येलोइश ही रहेगा। इट मीन्स उनके अंदर स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है मतलब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है, ठीक है। तो जो प्लांट, जो पोट आपने सनलाइट में रखा था, ठीक है, उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, उसमें स्टार्च होगा, तो जो आयोडीन टेस्ट होगा तो लीफ का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और जो पॉटेड प्लांट आपने सनलाइट से दूर रखा है 3 दिन तक, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, तो उसमें स्टार्च भी नहीं होगा। तो स्टार्च नहीं होगा तो जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो कलर नहीं चेंज होगा, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है। स्टार्च नहीं है मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, कि जो सनलाइट है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस एंड नो स्टार्च विल बी prepared, there will be no starch in the leaves, okay. नेक्स्ट इज लीव्स दैट आर नॉट ग्रीन। अभी हमने बात की कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो फूड बनाती हैं प्लांट्स की। अब आपने कुछ प्लांट्स ऐसे भी देखे होंगे जिनकी लीव्स ग्रीन होती ही नहीं है, ठीक है। अभी
ऐसा भी होता है कि लीव्स जो होती हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं, जैसे ऑटम सीजन आता है वो थोड़ा सूख जाती हैं या कुछ भी होता है, वो केस हम उस केस की हम बात नहीं करेंगे। वो लीव्स क्या होती हैं, वो एज्ड हो जाती हैं, फिर वो मर जाती हैं, टूट जाती हैं, उस केस की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स परमानेंटली अलग कलर की होती हैं, ठीक है। आप उसको ग्रो करोगे तो अलग डिफरेंट कलर की लीव्स होती है, रेड कलर्स की भी होती हैं, ब्लूइश कलर की भी होती हैं, ठीक है। तो उन लीव्स की अगर जब हम बात करेंगे, वो लीव्स जिनका जो कलर होता है वो ग्रीन नहीं होता है, ग्रीन के अलावा कुछ और होता है, कोई और डार्क कलर होता है, ठीक है, तो क्या उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है? सो द आंसर इज यस, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है, तो अभी जिनका कलर ग्रीन नहीं है उनमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है? सी, फोटोसिंथेसिस होने के लिए ग्रीन कलर क्यों होता है लीव्स का? बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो जो लीव्स ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, ठीक है, उनका कलर अलग होता है, ठीक है, जैसे कि रेड कलर की हो सकती है, ब्राउन कलर की हो सकती है, ठीक है। तो उन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अंदर दूसरे पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो दूसरे पिगमेंट क्या ज्यादा डार्क होते हैं, तो वो हमें ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता, ग्रीन कलर मास्क हो जाता है, छुप जाता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो होता है, तो क्लोरोफिल होता है, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments mask the green color, मतलब green color को वो छिपा लेते हैं, ठीक है। Photosynthesis takes place in these leaves also. Photosynthesis इन leaves में भी होता है, okay? सो our next topic is algae. आपने देखा होगा कहीं पर बहुत टाइम से पानी रुका हुआ है, जैसे आप तालाब देखते हो, पानी बह नहीं रहा है, जस्ट स्टेगनेंट है, एक जगह पे रुका हुआ है, पॉल्यूटेड पानी है, तो उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी। बहुत माइन्यूट से प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर के ऊपर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसे लेयर के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं एल्गी बोलते हैं, ठीक है। और वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। सो ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और इन अदर स्टेगनेंट वाटर, तालाब में या फिर कहीं भी रुके हुए पानी पर जो ग्रीन कलर के पैचेस हमको दिखाई देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं, ठीक है। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम ग्रीन कलर। तो एल्गी का कलर ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन देम, ठीक है। एल्गी में भी ग्रीन कलर क्यों होता है उनका? एल्गी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो एल्गी में भी क्लोरोफिल होता है, सो दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द सेम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी भी जो होती हैं वो अपना जो खाना होता है वो खुद से बना सकती हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। बट इसका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई पॉन्ड है, तालाब है, उसमें काफी टाइम से पानी है, पॉल्यूटेड हो चुका है पूरा, ठीक है, उस पर ऐसे ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है एल्गी की, ठीक है। अब एल्गी क्या करेंगी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगी, राइट, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रही हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रही हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन वो खाना भी बना रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो ऐसे एक लेयर बना लेती हैं उसके ऊपर, पॉन्ड के ऊपर, तो उससे क्या होगा, जो सनलाइट एनर्जी अंदर जानी होती है प्लांट, मतलब वाटर बॉडी के अंदर जानी है। सपोज एक पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर ऐसा एक लेयर बन गई है, पूरी थिक लेयर बन गई है एल्गी की, ठीक है। तो जो सनलाइट एनर्जी है वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो जो सनलाइट एनर्जी का पेनेट्रेशन है वो पानी के अंदर नहीं होगा, ओके। तो इससे क्या होता है, जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, जैसे पानी के अंदर, पॉन्ड के पानी के अंदर फिश होती है, ठीक है। दूसरे भी प्लांट्स होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं, सबमर्ज्ड मतलब जो पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, तो वो भी अफेक्ट होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अभी तक हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो प्लांट क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट्स। कौन सा न्यूट्रिएंट बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन देगा हमको? वो भी तो हमें चाहिए ना, तो वो भी प्लांट्स बनाते हैं, बट हाउ, दिस वी विल रीड।
प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये हमने पढ़ा है अभी, वी हैव डिस्कस दिस दैट जो प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है? देखो मैं आपको बताया था जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है? ग्लूकोज बनता है। अभी अगर मैं आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला बताऊं तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, मीन्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। ठीक है, इन सभी एटम्स को मिला के क्या बन जाता है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाम में ही देखो आपको कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड oxygen. So these are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. यही एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं से मतलब कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से ही फूड के दूसरे कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम नाइट्रोजन भी उसके अंदर जोड़ देंगे, नाइट्रोजन एटम्स को जोड़ देंगे तो हम प्रोटीन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, उनके अंदर कुछ एटम्स ऐड हो जाते हैं और वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। ठीक है, सो द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, अब प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, अब नाइट्रोजन कहाँ से आएगी प्लांट में? अब प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए ना अगर प्रोटीन बनाना है तो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल सब प्लांट्स ने लिया था, तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है प्लांट को? वो हम रीड करेंगे अभी। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? ठीक है, तो आपको पता है कि एयर में बहुत सारी नाइट्रोजन होती है, अराउंड 78% जो एयर है दैट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन ओनली। बट फिर भी वो एयर की जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स नहीं ले सकते। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले सकते हैं, बट जो नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन के जो एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन के सॉरी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको प्लांट्स जो है वो नहीं ले सकते डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से। तो जब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्लांट्स नहीं ले सकते तो फिर वो लेते कैसे? अब नाइट्रोजन तो चाहिए ना प्रोटीन्स बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन आएगी कहाँ से? ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। देखो नाइट्रोजन की जो वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं, वो हम पढ़ेंगे कि कैसे लेते हैं, बट उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन गैसियस फॉर्म इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। ठीक है, एयर में नाइट्रोजन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है लेकिन प्लांट्स वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में होती है? N2 की फॉर्म में होती है, और N2 की फॉर्म में मतलब जो नाइट्रोजन हवा में होती है उसको प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो फिर लेंगे कैसे? तो क्या होता है, सोयल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीजेस इट इनटू द सॉयल। द प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो सोयल के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हवा की नाइट्रोजन है, ठीक है, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है, गैस, नाइट्रोजन गैस है, उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देते हैं इस तरह से कि प्लांट्स उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो उसको इस तरह से चेंज कर देते हैं यूजेबल फॉर्म, मतलब प्लांट्स के लिए जो यूजेबल हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, उसको सॉयल में रिलीज कर देते हैं। सॉयल के अंदर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एयर की जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो नाइट्रोजन का जो कंपाउंड बन गया है उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। ओके, that process is called nitrogen fixation. These soluble forms of nitrogen are absorbed by the plants along with water. तो जब प्लांट्स की रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं तो हमने पढ़ा था कि वाटर के साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो उन मिनरल्स में नाइट्रोजन भी आ जाती है। कैसे आ जाती है,
थैंक्स टू बैक्टीरियाज, ठीक है। बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म में जिससे जिससे प्लांट्स के उसको ले सकते हैं, ठीक है। और वो उसको कहाँ मिक्स कर देते हैं, उस नाइट्रोजन, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को सॉयल में। तो सॉयल से जब प्लांट्स वाटर और मिनरल्स लेते हैं तो नाइट्रोजन भी उनके साथ एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इस तरह से प्लांट्स के पास नाइट्रोजन पहुंच जाती है। ओके, सो दिस इज द नेचुरल वे बाय विच प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। सो ये एक नेचुरल तरीका है, नेचर के अंदर ये तरीका है कि इस तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। बट समटाइम्स क्या होता है कि किसी प्लांट को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है और इतनी कैपेसिटी सॉइल की नहीं होती है कि वो इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सके प्लांट को, ठीक है। तो प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत है नाइट्रोजन की, तो उसमें क्या होगा, जो फार्मर्स होते हैं ना वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं सॉइल के अंदर जिसमें नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर कुछ केमिकल्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आर्टिफिशियल वे में नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंच जाती है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी क्या होगा, जो इसका सेकेंड पार्ट है वो मैं थोड़े दिन में लेकर आऊंगी। ओके, थैंक यू।